Good morning, my dear students. Welcome back again for our today's lecture. Class 5, subject English Grammar, chapter number 15. Kindly open your English grammar book, that is PC Rens. Today I will take lecture number 1 because it's our first lecture. Book's name is PC Rens. I told you earlier also. Please open PC Rens book. Okay, beta. This is of term 3. Okay, now we are going to cover lessons for term 3 and topic is voice. You know very well our lesson number 15 is voice. So in which I will teach you how do we frame sentences in voice and what are active and passive voice and how do we change sentences, how do we translate sentences into passive voice. Okay, because earlier I taught you tenses and tenses were in active voice. Note now, from today onwards, for 2 or 3 lectures, I'll teach you voice in passive voice. Okay, so just open your book given on page number 75. Right now, open it. So, beta, this is your lesson number 15 voice. In the voice means according to this lesson, you will be surprised that voice is avaz. Okay, but here voice is little bit different. Voice here means there are two type of voice, active voice and passive voice. When I taught you tenses, these were in active voice, but now today I'll teach you voice in passive voice. Okay, tenses were in active voice and now I will teach you the same tenses into passive voice. आई होप यू आर गेटिंग मी. पहले जो मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे, सिखाए थे आपको, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, दे ऑल वर इन एक्टिव वॉइस. बट टुडे I will translate the same tenses, same sentences into passive voice according to the tense. If it is in present indefinite tense, then I will teach you. I will translate it into passive voice using present indefinite tense only. Okay, this I will teach you in while writing. So let's start. So my dear students, earlier I taught you tenses. In tenses I taught you beta present tense, past tense, future tense. Okay, and accordingly we will translate those tenses into passive voice also. Okay, let's start. In tenses, something that was main focused on subject. Okay, beta. There we were doing according to the subject. Okay, but in passive voice we are going to focus on object. This you know very well what are subject and what are objects. Okay, suppose I am giving you an example. Raj, this is an example here. Raj plays cricket, and this you know very well, this is present indefinite tense because here with when if your subject is singular, then we have to write s or es in the verb. So in the Raj plays cricket, Raj is, this is subject. Okay, and this is verb, and this is, what is this? This is object. है ना? I taught you rule also, that I taught you one rule also while teaching you tenses, that the rule that we follow is subject plus verb and ends with object. Okay, in tenses we were focusing on subject. According to subject we were changing verb and object. Sorry, we were changing verb. But in passive voice beta, we are going to change its direction. Now we are going to focus on object. First of all, there must be object, then it will be followed by verb and subject will come in the last. Now this sequence we have to follow here. We have to follow this sequence here. First of all object, then verb, and its end with subject also. So this rule we are going to follow in passive voice. Tenses were in active voice. This was active voice. This sentence is an example of active voice. Okay, but in passive voice we are going to focus on object first of all. Now it will be in opposite direction, means earlier we were taking subject plus verb plus object, but now first of all we are going to take object, then verb accordingly, and last it will end with subject. How?
Okay, so in passive voice we can say the term that is used to describe the action in active and passive voice, that is called voice. So if somebody asks what is voice, तो आप एग्जाम क्या बताओगे? This is a the term which is used to describe, so I am telling you again, the term which is used to describe whether uh, whether the verb is active or passive. ओके, सो ये इट अ काइंड ऑफ अ टर्म, ये एक टर्म है बेटा जो ये डिस्क्राइब करती है कि जो आपकी वर्ब है वो एक्टिव है या पैसिव है। हमें पता है अगर वो एक्टिव है देन इट विल बी टेंस, अगर वो पैसिव है देन इट विल बी इन पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल ऑल्सो हेयर, द सेम एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक हेयर, राज प्लेज cricket. Okay, here we simply know that the doer is, यहाँ पे जो डूअर है वो सब्जेक्ट ही है। ओके, तो ये बेटा एक्टिव वॉइस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि टेंस जो है वो सारे एक्टिव वॉइस है। अब मुझे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अब जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो डूअर बन जाएगा, और जो आपका डूअर है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि सब्जेक्ट यहाँ पे राज है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और जो आपका सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा। इसमें मेन फोकस हमें ऑब्जेक्ट पे करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है यहाँ पे। अब आपको ये सब्जेक्ट है इसको नहीं देखना, आपको ऑब्जेक्ट को देखना है। दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। अब आपको ऑब्जेक्ट को लेके चलना है, ऑब्जेक्ट को आपको प्रेफरेंस देनी है। तो अब इसको मैं चेंज करूंगी, अगर पैसिव वॉइस में इसको सेम एग्जांपल अगर मैं पैसिव वॉइस में बनाती हूँ तो क्रिकेट आएगा, क्रिकेट। अब यहाँ पे क्रिकेट सिंगुलर है तो आपको यूज करना है इज, क्रिकेट इज। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, पैसिव वॉइस में आपको बेटा थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी हमेशा, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें ये नहीं है कि अगर आईएनजी, हाँ आईएनजी भी यूज करते हैं इसमें हम, लेकिन इसमें मेन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अभी आपको सिर्फ मेन जो अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के मैं यहाँ पे रूल्स बताऊंगी पैसिव वॉइस के, इसमें आपको मेनली क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्रिकेट इज, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय राज। अब ये हो गया आपका पैसिव वॉइस इन विच वी विल फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इज को यूज करा, और प्ले की जगह हमने प्लेड कर दिया बाय राज। राज जो ऑब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट था वो लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मेन चीज देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट अगर हम सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट ले जाएं और ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट ले जाएं तो वो पैसिव वॉइस में जाता है, लेकिन अगर वो सेम रहे तो वो एक्टिव वॉइस ही रहेगा। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस टेंस होगा, पैसिव वॉइस उसको हम चेंज करके, मतलब कि ऑब्जेक्ट को लेके हम उसमें चेंज करेंगे। अब क्या चेंजेस होते हैं इसमें ये सुन लो बेटा। जिस चीज का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो है बेटा कि इसमें आपको इज एम और आर का यूज करना है, इज एम आर प्लस V3 यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको यूज करना है इज एम आर और लास्ट में V3 और लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी V3, हाँ इज एम आर के बाद V3, उसके बाद में आ जाएगा आपका लास्ट में सब्जेक्ट। सो दिस इज द रूल, ये आपका रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो क्या रूल बताया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है, अगर सिंगुलर है ऑब्जेक्ट आपका तो आपको यूज करना है इज। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको यूज करना है आर। अगर ऑब्जेक्ट आपका आई है तो आपको यूज करना है एम, और लास्ट में आपको V3 यूज करना है। इसके बाद में आपको V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, आपकी बुक का ही एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि द टीचर टीचेस मयंक,
जो मयंक टीचर है वो मयंक को पढ़ाती हैं। तो दिस इज एक्टिव वॉइस बेटा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको आपको पैसिव वॉइस में करना है। पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब लास्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेके आओगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मयंक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आएगा मयंक। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपका, मयंक जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो आपको यूज करना है इज। मयंक इज, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, मयंक इज TUGST taught by the teacher। ओके, सो दिस इज योर पैसिव वॉइस। ये आपका बेटा क्या है, पैसिव वॉइस। अभी आज मैं आपको सिर्फ इंडेफिनिट के रूल्स बताऊंगी। मैं आज आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट बताऊंगी। पास्ट इंडेफिनिट नहीं करेंगे आज, हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे। ओके, वी विल टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक ओनली, that is children love dogs। ओके, दिस इज योर एक्टिव वॉइस। अब मैंने आपको बोला है बेटा इसको आपको पैसिव वॉइस में करना है, और आपको पता है बहुत अच्छे से कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, क्योंकि इसमें इज एम आर वॉज हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद में आप इसमें सीधा क्या यूज कर रहे हो, वर्ब यूज कर रहे हो, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा पैसिव वॉइस के लिए, द मेन थिंग इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डॉग्स। डॉग्स को ले आओ, डॉग्स। अब डॉग्स सिंगुलर है या प्लूरल है, डॉग्स आर प्लूरल, सो वी विल यूज अकॉर्डिंगली इज एम आर यूज करना, याद रखना। डॉग्स आर, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, डॉग्स आर लव्ड। यहाँ पे आप यूज करोगे बाय, सब्जेक्ट से पहले बाय चिल्ड्रन। ओके, सो सॉरी CHILDREN, यहाँ पे आई डालें। ओके, सो इट इज डॉग्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रन बेटा। सो दिस इज योर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको पहले ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करोगे। ओके, इज एम आर यूज करोगे, उसके बाद आप मेन वर्ब यूज करोगे, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब यूज करोगे, और लास्ट फिर आपको बाय यूज करना है। इसमें प्रीपोजिशन यूज होती है बाय, ठीक है, जिसके द्वारा करा जाता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद लास्ट में आएगा द्वारा, ठीक है, दैट इज बाय। इसमें बाय का यूज भी होगा बेटा, सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होगा। लाइक आई टॉट यू दिस रूल। ओके, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3, देन हेयर प्लस के बाद बाय, बाय सब्जेक्ट, बाय यूज करना है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, टीचर टीचर्स मयंक, मयंक इज टॉट बाय द टीचर, द टीचर से पहले आपको बाय यूज करना है, तो इसमें आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करनी है, बाय। बाय मीन्स के द्वारा, किसके द्वारा, जो भी सब्जेक्ट है उसके द्वारा। तो इसमें आपको मेन फोकस करना है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर को यूज करोगे। बेटा याद रखना, एक चीज का ध्यान रखना कि ये मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स बता रही हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, अभी आप सिर्फ इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही रूल्स पढ़ोगे, बाद में आप नेक्स्ट क्लास में आप और आगे पैसिव वॉइस का यूज देखोगे। अभी आप सिर्फ को प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या था एक्टिव वॉइस में, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये है प्लूरल के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपका सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस S और ES, ठीक है, V1 के साथ में S और ES, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये है आपका सिंगुलर के लिए। तो ये तो आपका एक्टिव वॉइस में। अगर आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे जैसे कि हम कर रहे हैं अब, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा बेटा, बताओ। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सब कुछ सेम, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में वन मोर थिंग, यहाँ पे कोई हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की थी, लेकिन हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज एम आर, ठीक है, यहाँ पे हम इज एम आर यूज करेंगे। उसके बाद आपको यूज करना है V3 के बाद में यूज करोगे आप बाय, और लास्ट में आप यूज करोगे सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा। दिस इज द रूल ऑफ पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय, एंड लास्ट इट एंड्स विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर यूज करना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, अगर आपका ऑब्जेक्ट आई है तो एम।
V3 by and subject. दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आज मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रही हूँ, पास्ट इंडेफिनिट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी बेटा. ठीक है, तो आपको जो एक्सरसाइज करनी है अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही करनी है. अगर आपका उसमें पास्ट का रूल आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वो मत करना आप. ठीक है. नाउ लुक इनटू योर बुक. This is given on page number 75. Compare these sentences. Now we have to compare. The teacher punished the boy. It is past indefinite tense. We know very well. After subject, it is verb V2. और हमें पता है सब्जेक्ट के बाद अगर V2 यूज हो रहा है तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. बट दिस इज एक्टिव वॉइस. अगर हम इसको पैसिव वॉइस में क्या करेंगे तो क्या जाएगा? द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर. इट इज द पैसिव वॉइस क्योंकि इसमें बाय आ गया. ठीक है, दिस इज पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस की वन आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि इसमें बाय आता है बेटा. ठीक है, अगर बाय आ रहा है तो मीन्स दैट इज पैसिव वॉइस. अंडरस्टूड. बट ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है. दिस आई विल टीच यू लेटर. अब आप देखो, इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट टीचर. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में? टीचर. डिड द पनिशिंग और इज द डूअर ऑफ द एक्शन. तो एक्शन कौन कर रहा है यहाँ पे? मेन बात किसकी हो रही है? सब्जेक्ट की. द वर्ब पनिश्ड इज देयरफॉर सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. इसलिए हम बोलेंगे जो पनिश्ड है वो एक्टिव वॉइस में है क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, क्योंकि यहाँ पे जो डूअर है वो सब्जेक्ट ही है. ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस है. इन द सेकेंड सेंटेंस, अब सेकेंड सेंटेंस में आ जाओ. द सब्जेक्ट बॉय रिसीव द पनिशमेंट. अब जो बॉय है वो पनिशमेंट को रिसीव कर रहा है और इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. अब यहाँ पे रिसीवर हो गया ये. ठीक है, बॉय जो हो गया वो पनिशमेंट को ले रहा है. द वर्ब वॉज पनिश्ड इज देयरफॉर सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. दैट इज व्हाई इट विल बी कॉल्ड इन पैसिव वॉइस. क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन चुका है. सब्जेक्ट के बाद में इसने अब क्या ले लिया है? पनिशमेंट को रिसीव कर लिया है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वॉज पनिश्ड होगा वो यहाँ पे पैसिव वॉइस होएगा. When the subject is the doer of the action, the verb is said to be in active voice. जो सब्जेक्ट है अगर वो एक्शन को कर रहा है, डूअर है, तब तो वो एक्टिव वॉइस है. जैसे कि मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे, सारे टेंस एक्टिव वॉइस होते हैं. बट व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. लेकिन अगर जो सब्जेक्ट है वो किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहा है, अगर वो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस है. लेकिन अगर वो सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट अगर किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलेंगे बेटा. ठीक है, तो अभी आपको होमवर्क यही होगा. यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 1. योर होमवर्क इज, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव के लिए ए और पैसिव के लिए पी लिखोगे आप यहाँ पे. ठीक है, तो अब आपको अंडरलाइन करनी है वर्ब्स फॉलोइंग सेंटेंसेस में और बताना है कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. सी बेटा, केयरफुली स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, यहाँ पैसिव वॉइस है. चिल्ड्रन लव डॉग्स. इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब इसको हमने पैसिव वॉइस में करा तो क्या आ गया? डॉग्स पहले ले आए हम. डॉग्स आर, क्योंकि डॉग्स बहुत सारे हैं तो आर. लव जो है उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है लव्ड बाय चिल्ड्रन. अगर यहाँ बाय आ गया तो दैट इज पैसिव वॉइस. सेकंड, गुनीत ओपन द डोर. गुनीत ने डोर ओपन किया. अब मैं बताऊंगी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाने हैं और जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा. मतलब कि अब जो गुनीत है वो एक्शन को रिसीव करेगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द डोर. क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसका रूल मैंने आपको नहीं बताया है, तो पास्ट इंडेफिनिट बेटा हम वॉज यूज करते हैं. ओके, वॉज ओपन को ओपन ही रहेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जो वर्ब होती है वो यूज होती है. यहाँ पे ओपन है सेकेंड फॉर्म इसकी. अब हमें थर्ड फॉर्म भी ओपन की ओपन ही होती है तो यहाँ पे ओपन ही लिखेंगे. द डोर वॉज ओपन बाय गुनीत. सेकेंड. थर्ड, द जैकल फॉलोड द टाइगर. द टाइगर वॉज followed by the jackal. These are the active voice and these are the passive voice. You see that in changing a verb from the active voice into passive voice, the object of the active verb becomes the subject of the passive verb. ये आपको मैंने बता ही दिया कि एक्टिव को पैसिव में करते टाइम में जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है. जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो आपका सब्जेक्ट बन गया. An intransitive verb cannot be turned into passive voice because it has no object. अब आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि there are two kind of verb, transitive verb और intransitive verb. Transitive verb में ऑब्जेक्ट होता है, intransitive verb में ऑब्जेक्ट नहीं होता है. इस बात का आपको ध्यान रखना है. तो ट्रांजिटिव वर्ब जो इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते. व्हाई वी कांट चेंज बेटा? दिस यू विल टेल मी.
इसलिए नहीं कर सकते हम क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो? नो, यू कांट चेंज। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई हैड टू मेंशन हियर। मुझे यहाँ मेंशन करनी पड़ी आपको समझाने के लिए। बाकी चीजें we will read in next lecture, but along with this we will continue the same thing. ओके मैं आपको दोबारा मैं ये रीड आउट करूंगी, दोबारा आपको ये सारे रूल्स बताऊंगी, तो आपको भूलना नहीं है। यू हैव टू कीप योर पेंसिल एंड नोटबुक along with you in online classes. There we will discuss many things. So be ready. I'll ask some questions also, and do watch this video not only one time but 2 or 3 times to get the topics cleared, because I got to know in PTM that most of the students do not watch videos, and whenever they come in online classes they remains mum at that time. They do not speak even a single word because they don't know what is going on in the classes, because as they had not watched any lecture before. That is why I don't want to receive these complaints again. They have to watch these videos carefully and come in online class after watching video. So I will ask question and you will be mentioning the answers while watching the video. Okay, so your homework is beta, do exercise 1 given on page number 75, and we can say some part is given on page number 76 in PC Rans book. Okay, PC Rans book में देखो जो एक्सरसाइज है एक्टिव पैसिव वॉइस की, वो आपको करनी है, जिसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, और उसमें आपको वर्ब को भी अंडरलाइन करना है। Understood? So this is your homework. Do exercise number 1 given on page number 75, and some part of it is given on page number 76 in PC Rans book. Do it carefully and do come in online classes after watching the video carefully. Thank you very much for watching this video. I hope you understood the rules, and some rules means the same rules I will be discussing in online classes. Come in online classes beta. Bye bye everyone.